video will cover the whole budget, all the relevant portions, which will be helpful for prelims. So this time in the budget, it is called as Saptarishi. So here 7 priorities have been given: inclusive development, financial sector, then something for the youth, then for green growth, that is green energy, unleashing the potential, then for something for infrastructure and reaching the last mile. So everything will be covering as per the budget. This is called Amrit Kal. Fine. So this is the man, the finance minister, R.K. Shanmugam Chetty, on his way to present the first budget of independent India on 26th November 1947. So before starting the budget, we have some rituals and traditions of Indian budget, that is the halwa ceremony. So in the halwa ceremony, like we have covered in the last current affairs also, it marks the start of the lock-in period for all the officials involved in the preparation of the budget. Okay, so lock-in period means it is the time when all the officials of that who are involved in the budget, they will be locked up in the north block. So that is a ceremony called halwa ceremony. The sweet treat is served in a huge kadai, that is we call it as wok, and served to the entire staff. Now another thing is also called Bahi Khata, that is in a departure from the colonial symbolism, budget papers were carried not in a briefcase but in a red cloth tied with a string by the finance minister in 2019. काफी recent ये चीज है. These are all symbolic. Okay, these are used for symbolism. Now coming to the budget, so this is called as the green budget because it is paperless. To keep up with the changing times, a paperless budget was introduced in 2021. So in 2023, it is the third time when it is the paperless budget is being used. Now MPs and general public could access the budget hassle-free on the Union Budget web portal app. Now we'll start with agriculture. Okay, we'll start with agriculture and we'll end with the financial sector. Okay, fine. In agriculture, there is some credit of 186 lakh crore. See, all these things are not required, at least as much as prelims is concerned. These are not required. Okay, so I'll be telling you all those information which is required from prelims point of view. So here, agriculture accelerator fund to encourage startups in rural areas. So this is a new thing. So this is important for prelims. Atmanirbhar Bharat Horticulture Clean Plant Program to boost production of horticulture crops, high value horticulture crops. 20 lakh crore credit has been given to animal husbandry, dairy and fisheries sector. Additional storage capacity for farm produce, and there is something called Shri Anna, support to making India a global hub for millets. So the focus is being given on millets. We will cover all these things now. We'll cover all these things. So here, green credit program to incentivize sustainable actions. PM Pranam. Now this is a new thing. To be launched means it will be launched this year. Okay. Now PM Pranam is to promote alternative fertilizers. Okay. Now 500 new waste to wealth plans to be established under Gobardhan scheme. Now Gobardhan scheme is a old scheme. It is a 2018 scheme, galvanizing organic bio agro resources dhan. Okay. Now they are saying 500 new waste to wealth plants will be established under this scheme. So this is not a new scheme. This is an old scheme. So we'll cover here. The scheme is implemented by Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2, that is by Ministry of Jal Shakti. It is not Ministry of Agriculture. It is not Ministry of Agriculture. Remember, it is under Jal Shakti Ministry and it is implemented by SBM Gramin. Okay. SBM Swachh Bharat Mission has two things, two components. One is Gramin, one is urban. But this is implemented by Gramin. Now what the scheme does, it aims to augment income of farmers by converting biodegradable waste into compressed biogas. Simple. फार्मर्स का इनकम बढ़ाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करेगा बायोगैस पे. दैट्स इट. सो दैट इज इट इज कॉल्ड वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स.
The initiative aims at attracting entrepreneurs for establishing community-based compressed biogas plants in rural areas. Okay, so Govardhan scheme is in news, so you may expect a question in prelims. Now another new thing is Mishti. It is, we'll cover this. It will be taken over mangrove plantation along the coastline. So mangrove plantation को भी importance और focus दिया गया है through मिष्टी scheme. Okay, और क्या है, अमृत धरोहर to be implemented over next 3 years for optimal usage of wetlands. तो यहाँ पे मैंग्रोव वेटलैंड्स के लिए नया स्कीम्स आ गया है, अमृत धरोहर एंड मिष्टी. सो यहाँ पे वेटलैंड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट टॉपिक. वेटलैंड अगर आ सकता है तो रामसार कन्वेंशन के बारे में भी आ सकता है. रामसार कन्वेंशन आई हैव कवर्ड इन 27th और 28 करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी. फुल डिटेल में कवर हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. मैंग्रोव्स भी इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स. ओके, नाउ अभी जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा पीएम प्रणाम एक नया स्कीम है. सो पीएम प्रोग्राम फॉर, इसका जो फुल फॉर्म है, इट इज़ पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म है. ओके, अब ये स्कीम करेगा क्या, इट विल इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इसमें इंसेंटिवाइज करेगा टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सी, fertilizers are used, okay, but overuse of fertilizers is not sustainable. Overuse of fertilizers बहुत होता है, so it is not sustainable. If you see the whole January current affairs, in one or the some date I have covered about fertilizers. Okay. Fine. So this is a upcoming scheme. This is a new thing. Now with an outlay of 20,000 crore, the Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Program to be launched. Now to be launched, it is also a new scheme. Okay, ये किसके लिए है, हॉर्टिकल्चर के लिए है. ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ही होगा बिकॉज हॉर्टिकल्चर है, सो इट क्लियरली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ agriculture. So these all schemes will be launched very soon. They have mentioned in the budget. Now coming to some new thing, new age infrastructure for farmers. Okay, now as we always like we study in our GS course ki farming is like people think it is a very rural kind of thing, rural areas में based है, लेकिन फार्मर्स को और फार्मिंग को हमको यूथ तक लेके जाना है, स्टार्टअप्स वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो ऑल दिस थिंग द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेटर, agriculture accelerator fund setting up of. So it is also a new thing. So these are all important for prelims. Okay, so ये फंड करेगा क्या, पहले ये फंड इज टू सेटअप टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स. तो यहाँ पे स्टार्टअप्स पे फोकस हो रहा है, agricultural startups in rural areas. The main aim of the fund is to provide innovative and affordable solutions. It will focus only on farmers and the challenges faced by them. ठीक है, more young entrepreneurs will be encouraged to begin agriculture startups using these funds. तो इसका मतलब they are connecting agriculture with the youth. Okay, youth entrepreneurs को they are telling you should come and invest in agriculture, so that agriculture का productivity बढ़ेगा and that will anyways give more contribution to our GDP, because agriculture का contribution to our GDP is very less, around 14 to 16%, very less. So startups focusing on cost effective solutions will be given priorities. Fine, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी यूज होगा. फाइन, एग्रीकल्चर में. सो ऑल दिस थिंग्स are important for prelims. ठीक है, फाइन. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3-4 स्कीम्स काफ़ी फोकस दिया गया है पीएम प्रणाम पे. फर्टिलाइजर के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन. कोई अगर सस्टेनेबल एक्शन करेगा तो उसको इंसेंटिवाइज दिया जाएगा और क्रेडिट दिया जाएगा. तो दीज ऑल थिंग्स विल बी इन न्यूज़ होल दिस ईयर. इस ईयर पे न्यूज़ में आएगा. गोवर्धन स्कीम इज ऑलवेज इन न्यूज़, पुराना स्कीम है 2018 का. ओके, और मिष्टी फॉर मैंग्रोव एंड अमृत धरोहर फॉर वेटलैंड्स. ओके, फाइन. नाउ कमिंग टू अनदर सेक्टर, दैट इज कस्टम ड्यूटीज. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, राशनलाइजिंग कस्टम ड्यूटीज फॉर ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. ओके,
तो यहाँ पे कस्टम्स कहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होता है कस्टम्स। सो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज वी आर like we are there is a transition to electric vehicles, right? Transition to electric vehicles. We have also a scheme, you can cover the scheme, FAME scheme। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो उसके लिए तो ग्रीनर मोबिलिटी के इसका एक बेनिफिट होगा, कस्टम ड्यूटी जगह चेंज हुआ है। डीनेचुरेटेड इथाइल अल्कोहल केमिकल इंडस्ट्री के लिए। की इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड। अब हम विल कवर दिस व्हाट इज श्रिम्प फीड। तो इसके लिए भी कस्टम ड्यूटी चेंज हुआ है क्योंकि मरीन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए। सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। तो कितना चेंज हुआ है वी विल कवर, एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है। मोस्टली इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, स्टिल देन कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप। तो ये क्या करेगा, जो रॉ मटेरियल है एमएसएमई यूज़ करते हैं तो उसमें हेल्प हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली जो गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कट कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स फ्रॉम 13% टू 13% फ्रॉम 21%। 21% कस्टम ड्यूटी कम करे। सो ये सब बेनिफिट द सेक्टर्स विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स, स्टिल देन यू कैन वी कैन जस्ट गो थ्रू। In terms of more scopes to the electric vehicle industry, customs duty on specified capital goods or machinery for the manufacture of lithium ion cell for the use, क्योंकि lithium ion cell electric vehicles में use होता है। So for the lithium ion cell for the use of battery in the electrically operated vehicle extended to March 31। Custom duties on cloths, frozen mussels, frozen squids, asafoetida, cocoa beans, methyl alcohol, acetic acid, ये सब, and cut and polished diamonds, chemicals needed for petroleum products, कैमरा लेंस फॉर सेल्यूलर मोबाइल फोन्स, स्टील स्क्रैप, ये सब रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी तक रिड्यूस हुआ है तो जाहिर सी बात है द आइटम जब बाहर से जब आएगा कस्टम ड्यूटी कम होगा तो जाहिर सी बात है इट विल बी चीपर। सो इट इज़ अ गुड फॉर द कंज्यूमर, फ्रॉम द कंज्यूमर एंगल इट विल बी गुड। Others include will become cheaper like open cells of TV panels, denatured ethyl alcohol जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, कंपाउंडेड रबर, ये सब कम हो जाएगा कस्टम्स ड्यूटी। Customs duty on camera lens and its inputs or parts for use in the manufacture of camera mobile of cellular mobile phone reduced to zero, and concessional duty on lithium ions or batteries was extended for another 1 year. So these are much not required for prelims. Will not ask you these kind of questions. But the here what is important is you need to know about lithium ion, its applications, electric vehicles, the related schemes of electric vehicles. All these things you have to cover. Okay, fine. Among the raw materials needed for factories, items like acid grade fluorspar, denatured ethyl alcohol, crude glycerin would get cheaper owing to the change in their duties. While basic custom duty जिसको हम BCD बोलते हैं, the basic customs duty exemption on raw materials for manufacture of CR, GO steel, ferrous scrap and nickel cathode continued। तो कुछ continue हुआ है, कुछ कम हुआ है। So mostly it is not much required for as far as UPSC prelims is concerned। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए भी बेसिक कस्टम ड्यूटीज को कट कर दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर पार्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनी हैज बीन इंक्रीज। तो जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी होता है उसका बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो गया है 7.5% टू 15%, बट द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन हीट कॉयल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक किचन, लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए मतलब जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, द थिंग विच इज़ नीडेड फॉर दैट हीट कॉइल, उस उसका बेसिक कस्टम ड्यूटी कम हुआ है। तो इट मीन्स द गवर्नमेंट इज गिविंग ए बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक बूस्ट दे रहा है सो दैट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिलेगा। इट इज़ रिड्यूस्ड, जो हीट कॉइल का है 20% से 15% हुआ है। फाइन, ओके, नाउ विल स्टडी समथिंग अबाउट श्रिम्प फीड। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे श्रिम्प फीड, इफ यू सी हियर
दिस वन की इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, तो उसमें कस्टम ड्यूटी कम हुआ है, सो दैट मरीन एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा ना। व्हाट इज श्रिम्प फीड? सी, जब से ये न्यूज़ आया है कि श्रिम्प फीड कस्टम्स ड्यूटी ऑन की इनपुट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प फीड रिड्यूस हुआ है, सो दैट द एक्सपोर्ट सेक्टर थोड़ा कम्पिटिटिव होगा, इट विल इंक्रीज इमीडिएटली। एक्वाकल्चर का स्टॉक्स सोर्स आफ्टर गवर्नमेंट स्लैशेस कस्टम्स ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड। जो शेयर्स होते हैं अवंती फीड, कोस्टल कॉरपोरेशन, वाटर बेस, इसका जो शेयर्स है इट सोल्ड अप टू 20% इन ट्रेड एज अगेंस्ट 2.5% क्लाइम इन द बीएसई सेंसेक्स में भी काफ़ी ग्रो हुआ है। सो ये जो श्रिम्प फीड होता है इट इज़ ये चीज़ ओके। तो एक्वाकल्चर में इट हैज़ इस एप्लीकेशन इन एक्वाकल्चर और फिशरीज बोल सकते हो, जो कि प्रॉन इंडस्ट्री। द government announced a reduction in customs duty on key inputs for producing shrimp food which should generate marine exports। तो ये marine exports को काफ़ी help करेगा। It will help in the exports of prawn and shrimps feed jumped 132% to 18 lakh 311 crore in this one. Not required. These things are not required. But remember, it will help in increasing export of prawns. Okay. तो कहीं ना कहीं हमारा मरीन एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट मिल रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू सम इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, सेम थिंग। यहाँ पे मरीन प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस ड्यूटी ऑन की इनपुट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प फीड। डायमंड्स के लिए भी हमने पढ़ा, अभी रिड्यूस हुआ है। प्रीशियस मेटल्स के लिए, बट प्रीशियस मेटल इंक्रीज द कस्टम ड्यूटीज ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड और प्लैटिनम के लिए कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुआ है। ओके, टू इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पे ये सब बढ़ा है। ओके, कंपाउंडेड रबर पे इंक्रीज हुआ है 10 to 25। नाउ सी दीज थिंग्स, this is important, marine is important, these two are not important, this is also not important, but cigarettes are important because it is a very big news today. So the national calamity contingent duty on specified cigarettes to be revised upwards by about 16%। आज सुबह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। सो हियर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू विल कवर ये ड्यूटी है क्या, कहाँ से आता है, कौन से लॉ से आता है, फ्रॉम विच लॉ इट कम्स। ओके, इस NCCD। सो NCCD इज नथिंग बट नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। तो ये एक टैक्स है बेसिकली। ओके, इट इज लेविड एज ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन सर्टन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर ये ड्यूटी लगता है। कौन सा गुड्स? सर्टन गुड्स स्पेसिफाइड अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2001। अब फाइनेंस एक्ट 2001 का 7th शेड्यूल में जो जो मैन्युफैक्चर्ड सर्टन गुड्स हैं उसके ऊपर ये नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगता है। दिस इज द 7th शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पान मसाला है, अदर देन फिल्टर सिगरेट्स है, अदर देन फिल्टर समथिंग उसका प्राइस को लेके है, फिल्टर सिगरेट्स है, ये सब है। ठीक है, सिगरेट्स ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, हुक्का, स्मोकिंग मिक्सचर्स, ये सब इसी शेड्यूल में, तो इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा। ओके, सो दी वो जो टैक्स लगता है वो फाइनेंस एक्ट में है, ये पावर दिया गया है। ओके, तो दिस इज द ड्यूटी। नाउ द नेशनल कैलेमिटी ड्यूटी or the national calamity contingent duty chargeable shall be in addition to any other duties of excise chargeable on such goods under the central excise act। कोई भी और ड्यूटी पहले से लगा हो, इफ सपोज देयर इज सम अदर ड्यूटी आल्सो एज पर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसके ऊपर ये भी लग सकता है। ओके, इट विल बी इन एडिशन। ओके, फाइन। सो ये सेंट्रल एक्साइज, ये सब लॉ पे लिखा है यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू इट केम फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2001। It is applicable on those products, on certain products which are available in the 7th schedule of the Finance Act of 2001. Okay. Now coming to some direct tax proposals. In direct tax proposals, not much in news, but from exam point of view, you should know this part. So these are some MSME के ऊपर कुछ हुआ है, कोऑपरेशन स्टार्टअप्स के ऊपर। These are not much important. For example, अग्निवीर को टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा ऑन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड में।
बट एक नया चीज़ इस सुबह का जो न्यूज़ था दैट इज persons in the new tax regime जो हुआ है अभी with income up to 7 lakh will not have to pay any tax. It's a very big news. Okay. पहले this was 5 lakhs, अभी 7 lakh हो गया है. So this इसका like what is the सिग्निफिकेंस क्या है? सो दिस विल रिजल्ट इन गिविंग मोर कंजम्पशन बिकॉज ऑब्वियसली कुछ टैक्स देना नहीं है 7 लाख तक, so consumption more होगा, will not give money to the government, so the money will be with us, so we'll consume more, so कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा. Okay, so it will give more consumption power to the middle class income groups as they could spend the entire amount of income without bothering too much about investment schemes to take benefit of exemptions. Plus if you see एक कहीं ना कहीं spending बढ़ेगा, spending will increase, so the government wants to increase or boost the overall demand. Okay, fine. Now coming to Gati Shakti. Now coming to infra. So here infrastructure development के लिए गति शक्ति का फोकस दिया गया है. गति शक्ति इज नॉट अ न्यू थिंग, इट्स अ ओल्ड थिंग. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज हुआ है फॉर द थर्ड टाइम इन ए रो गति शक्ति के लिए. 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है. गति शक्ति इज बेसिकली कनेक्टिविटी. ओके, इट विल कनेक्ट रेलवेज, रोडवेज कनेक्ट करेगा. फॉर कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर सबको कनेक्ट करेगा. ओके, highest ever capital outlay of 2.4 lakh crore for railways, continuing a 50-year interest-free loan to state government to incentivize infrastructure development. So this is a prelims point. 50-year interest-free loan दिया जाएगा state government को to incentivize infrastructure investment under this Gati Shakti. So Gati Shakti is a digital platform that will bring 16 ministries including railways, roadways together for integrated planning, coordinated implementation of infrastructure connectivity. So this is the keyword, infrastructure connectivity projects के लिए है ये. It will help in removing long-standing issues such as disjointed planning, lack of standardization problems, clearance का problem होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी का यूज़ सही से नहीं होता, टाइमली क्रिएट नहीं होता, तो लॉट ऑफ इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन हैपेंस ड्यू टू विच डिले होता है चीज़ें. सो गति शक्ति उसी को बंद करने के लिए है. इट विल ऑल्सो सबस्यूम द 110 लाख करोड़, पहले एक न्यूज़ में था NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये स्कीम गति शक्ति के अंदर सबस्यूम हो गया. इट हैज सबस्यूम दिस स्कीम एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2019. ओके, सो Gati Shakti, these are the targets for all infrastructure ministries to be achieved by 2024-2025. 11 industrial corridors, 2 new defense corridors, Tamil Nadu, Uttar Pradesh hai, and go through the defense corridors exactly which place to which place. इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स होगा, फिर फार्मा क्लस्टर्स होगा, सो ऑल दिस एयरपोर्ट्स है, 4G कनेक्टिविटी टू विलेजेस, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ये सब प्लान हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ द गति शक्ति स्कीम. सो नेक्स्ट इज विवाद से विश्वास. सो ये भी न्यूज़ में, पहले भी न्यूज़ में था. इट इज़ नॉट न्यू, इट इज़ ओल्ड. ओके, सो हियर व्हाट विल कवर दिस स्कीम है क्या, बट न्यूज़ में ये इसलिए है बजट में. इन केसेस ऑफ फेलियर बाय MSME टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग कोविड, 95% ऑफ द forfeited amount will be returned to them by government. So it will provide a relief to MSME. ना exactly क्या है, पहले if we study this then only we can understand this. विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में लॉन्च हुआ था आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था, विवाद से विश्वास बिल करके वो पास हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस लिटिगेशन. ओके, so it provides for settlement of disputed tax, disputed interest, disputed penalty or disputed fees in relation to an assessment or reassessment order. बहुत सारे डिस्प्यूटेड चीज़ रहता है. डिस्प्यूटेड पेनल्टी हो सकता है, आप नहीं दिए हो, वो कोर्ट गया है. कुछ डिस्प्यूटेड फीस रहता है. तो उस लिटिगेशन को कम करने के लिए दिस इज द स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम. तो ये होता क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी लेवल पे चल रहा है डिस्प्यूट. नाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट और फी. सेटल हो जाएगा अगर आप इतना पैसा दे दोगे. ओके, द इंटरेस्ट इज ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम लेवाई ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी भी नहीं मिलेगा,
इंस्टीट्यूशन एनी प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एनी इफ देर इज एनी चांस ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इफ यू पे दिस मच, सो दैट विल नॉट हैपन। विवाद से विश्वास। तो दिस इज द स्कीम, ओल्ड स्कीम 2020 से। ना अभी न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में ये है कि अगर एमएसएमई कोई विवाद चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है कोई एमएसएमई का, ना हो अब टू एग्जीक्यूट, और जो कॉन्ट्रैक्ट वो कहीं ना कहीं कोविड पे हुआ है, तो 95% ऑफ अमाउंट जो गवर्नमेंट ने लिया है इट विल बी रिटर्न। फोरफिटेड मतलब अगर गवर्नमेंट ने लिया है तो इट विल बी रिटर्न। ओके, जो फाइन्स रहता है जो भी रहता है जो पेनल्टी अमाउंट वो 95% रिटर्न हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई को इट इज़ गिविंग अ बूस्ट टू एमएसएमई सेक्टर। ओके, to settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement system with standardized terms will be introduced. Now the government is saying अगर कोई एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है जो कि एक कोर्ट में चल रहा है, तो एक वॉलंटरी सेटलमेंट बाहर से हो सकता है। ओके, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी सून, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी सून। So this is फैक्ट रिगार्डिंग द फास्ट ट्रैक हो रहा है। तो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये सीबीडीटी का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ओके। नाउ वुमेन के लिए क्या है? वुमेन के लिए पहले तो एक नया स्कीम जो है दैट इज़ द महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये एक बहुत ही बड़ा स्कीम वुमेन के लिए आया है। ये क्या है ये स्कीम? It has announced the issue of Mahila Saving Samman certificate in this budget. So it is a new thing. Okay. This will be a 2-year saving scheme which will be availed till 2025. 2-year saving. क्या saving होगा? There will be an investment option up to 2 lakh women के लिए. You have to invest. So आप invest करोगे so you will get a fixed interest मिलेगा आपको, 7.5% का interest मिलेगा. And the women are also able to make partial withdrawal, not full, partial. Remember, partial withdrawal option is there. Okay. And most of the women are also involved in self help groups, तो उनको भी कहीं ना कहीं help मिल जाएगा. So it will enable self help groups to reach next stage of economic empowerment through large professionally managed producer enterprises. तो कहीं ना कहीं like आप invest करोगे आपको interest मिलेगा, so it can be used. Okay, so basically this is for women empowerment or women financial empowerment or financial independence. Now youth के लिए क्या है? यूथ के लिए एक स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे द डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग आपका लिंक होगा एम्प्लॉयर के साथ। कोई एक स्किल का डिमांड है तो एक फॉर्मल स्किलिंग आपको करेगा एंड इट विल बी लिंक टू द एम्प्लॉयर्स एंड फैसिलिटेटिंग टू एक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स के साथ लिंक हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। 3 centers of excellence for artificial intelligence to be set up, so it will be news. 3 center of AI, so artificial intelligence is in news. Okay. Realizing the vision of make in India and make artificial intelligence work in India. Okay. फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये पुराना स्कीम है, इट्स एन ओल्ड स्कीम, इट इज़ नॉट न्यू। ये बेसिकली स्टाइपेंड देता है, टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 lakh youth through direct benefit transfer directly to your bank account को जाएगा stipend. So you can cover this scheme. It's an old scheme. Now fourth version or 4.0 of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, very famous, very important, exam पे आ रखा है, 3-4 years back it has already been asked in paper. So ये on job training, industry partnership, alignment of courses with the needs of the industry, basically job skill, it is related to skill. So this ministry is under ministry of this scheme is under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay, it will be launched to skill lakhs of youth within next 3 years. On job training, industry partnership, alignment of courses with needs of the industry, with the demand of the industry, उसी हिसाब से कोर्स अलाइन होगा।
और अब नया चीज़ क्या है, इट विल नाउ लाइक न्यू एज कोर्सेस ऐड हुआ है। आज के कोर्सेस में बहुत सारे नया नया स्किल्स आ रखा है। इंडस्ट्री 4.0 का कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़ में है आजकल, एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स। ये सब ऐड हुआ है इस बार। नाउ इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, but it is implemented by again another ministry, another corporation, that is NSDC, very important, National Skill Development Corporation, which will cover here itself. Now नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काफ़ी पुराना एजेंसी है, एक कंपनी है, बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जाहिर सी बात है इट विल बी registered under Companies Act, okay, of 1956, but now corresponding to the latest act, that is Companies Act of 2013. Now NSDC काम तो करता है MS मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इट वाज सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यू हैव टू रिमेंबर 2008 में 2008 में इट वाज सेट अप, दैट टू, एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज बाय PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट मीन्स ये जो कॉरपोरेशन है इट इज हैंडल्ड सम शेयर्स बाय पब्लिक, सम शेयर्स बाय प्राइवेट। नाउ कितना शेयर? 49% गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ओके। इसका जो शेयर कैपिटल है 51% इट इज बाय द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज वाई इट इज PPP मॉडल पे ये शुरुआत हुआ है। इट स्टार्टेड एज अ PPP पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुआ है 2008 में। हाँ, NSDC काम क्या करता है? बेसिकली ये फंडिंग करता है टू कंपनीज, एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट इन स्किल डेवलपमेंट। इट ऑल्सो डेवलप्स अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू एनहांस सपोर्ट कोऑर्डिनेट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भी काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव वही है, स्किल डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्टिव। तो इसका भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि न्यूज़ में आते रहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जहाँ पे स्कीम्स सिखाया जाता है, द स्किल सिखाया जाता है। कौशल विकास योजना अभी हमने पढ़ा, जो कि अभी 4.0 न्यूज़ में है। इंडिया इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर नेटवर्क, स्वदेश, सीखो और कमाओ, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। तो दीज 3 आर इम्पोर्टेंट, ओके। फाइन। नेक्स्ट इज देखो अपना देश। तो ये थोड़ा बहुत विलेज की तरफ, ओके। Here, government said under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. तो यहाँ पे कीवर्ड है border villages और एक कीवर्ड है Vibrant Villages program. अब Vibrant Villages program is not new, it is not very old also. It is in 2022, last year. It was announced in last year budget. It was announced, ठीक है। Now, what is the work of this Vibrant Villages program? The work is it envisages coverage of border villages on northern border having sparse populations, limited connectivity and infrastructure which often get left out from development then. जहाँ पे बॉर्डर एरियाज पे कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होता है, ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट एरिया टू गेट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो उन्हीं के लिए ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, बॉर्डर एरियाज। तो हियर द कीवर्ड इज बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी। So it should be used by all border guarding forces to encourage tourism in border villages to make self-reliant and to make them vibrant. So here अगर border area की बात हो रही है, so I would suggest please go through the border area development program. Border area development program old news है but still it is happening, so you have to cover this. Also और एक चीज़ सरकार ने ये बोला कि the states will be encouraged to set up a unity mall. States will be encouraged मतलब अभी होगा, ये सब इस साल होगा। तो यूनिटी मॉल फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये इट इज़ एन ओल्ड थिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। यू कैन गो थ्रू इट। एवरी डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के साथ लिंक किया जाएगा एंड दैट डिस्ट्रिक्ट विल बी फेमस, दैट प्रोडक्ट विल बी फेमस, ओके।
to have their own one district, one product, GI products and other handicraft products. Okay, so here cover border area development product and ODOP. These two are important and mostly it is in news also. Next is next is an important topic: creating sustainable cities for tomorrow. Okay, so basically it is related to urban planning or urban cities. Okay, or urban sustainable cities. तो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया है. So here the cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bonds. Bonds created or raised by municipalities. Bonds are nothing but a financial, it is a financial mechanism to raise money. Okay. So municipal bonds are like they are not that much famous in India, but still then the prospect is good. Okay. So the government is telling कि the credit, to improve credit, municipality should raise bonds. Okay, municipal bonds. यहाँ पे एक चीज नया आया है, that is the new thing is urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. तो यहाँ पे और एक concept economic आ गया, PSL. Okay, now we'll do this in detail, but before that, all cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole made. Okay, तो अर्बन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए फोकस ये है. तो अभी यहाँ पे जो कीवर्ड है, दो चीज़ आएगा, UIDF. Now the thing is, if UIDF is coming, so you should know that is from our eco-static course. When you study eco or agriculture or banking or anything, you will come across Rural Infrastructure Development Fund. It is already there. Now on similar style, they are or the government is wanting to create a Urban Infrastructure Development Fund, which will be a new one. Okay, so it is telling setting up of Urban Infrastructure Development Fund to create infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities में. Okay, वहाँ पे अर्बन ज़्यादा होना चाहिए. Tier 1 cities is already urban, right? So यहाँ पे allocate किया गया है 10,000 crore annually. So this money is not required for exam point of view. So here, like the RIDF, UIDF will be established through the use of priority sector lending shortfall, and this UIDF will be managed by National Housing Bank, very important, National Housing Bank, and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3. Now you need to know here, इसका मतलब क्या है, priority sector lending shortfall. Now you will come to know only if you know what is PSL. Okay. Now, first of all, we'll study what is PSL, then we'll come to here. PSL are those sectors that the Government of India and RBI consider as important for the development of the basic needs of the country and are to be given priority over other sectors. Okay. So, under priority sector lending, the banks are mandated to encourage growth of such sectors with timely and adequate credit. It means PSL जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स है, दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पे बैंक्स को अच्छा खासा क्रेडिट देना पड़ेगा. ओके, और लोन्स देना पड़ेगा. ओके, इट इज़ प्रायोरिटी बिकॉज दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट्स क्रेडिट, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल, रिन्यूएबल एनर्जी. दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर डेवलपमेंट, राइट? सो गवर्नमेंट और RBI इसको इम्पोर्टेंट सेक्टर मानते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री. So they are mandated. So it is mandatory. It is mandatory. You have to give some amount of money. Now origin हुआ था ये concept का 1966 में. Okay. I guess Morarji Desai या someone उनके he was the one who started this. That is not much important, but you need to know the concept. So here क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी डोमेस्टिक बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और फॉरेन बैंक है, जो इंडिया में जो फॉरेन बैंक है विथ 20 ब्रांचेस. फॉरेन बैंक्स का 20 ब्रांचेस, एक लिमिट है, 20 से ज़्यादा फॉरेन बैंक्स है, और जितना भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स है, SBI हो गया, HDFC हो गया, एवरीथिंग पब्लिक प्राइवेट बोथ, दे हैव टू गिव 40%.
of their adjusted net bank credit or credit equivalent of amount of off balance sheet exposure, whichever is higher. 40, so just remember 40% they have to give to total 40% they have to give to priority sector lending sector, PSL sectors, these sectors. But remember, out of 40, agriculture is 18%. No need to remember all this. Agriculture is 18%. Okay, out of 40, agri is 18%. Okay, they have to give mandatory hai. So foreign banks with less than 20 branches, okay, they have to give 32%. Okay, and regional RRBs, regional rural banks 75%, small finance banks 75% they have to give. Okay, just remember ये जो banks है, you no need to remember all the percentage of this. Just remember agriculture 18%. PSL targets for अर्बन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, उनका भी 40% है, बट इट कैन बी इंक्रीज टू 75% विथ इफेक्ट फ्रॉम 2024. माइक्रो, ये लोग माइक्रो को 7.5% दे विल गिव एंड एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस को 12% दे विल गिव. वीकर सेक्शंस इसमें आता है सोशल में, सोशल में वीकर सेक्शंस आ जाएगा. ओके, ना प्रॉब्लम क्या ना हुआ होता क्या है, इफ द बैंक इज नॉट एबल, क्योंकि मैंडेटरी है, इफ द बैंक इज नॉट एबल, अगर फेल होता है देन द बैंक हैज टू, एक ऑप्शन ये है, हैज टू गिव सम मनी टू RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि ये है पहले से है, दिस वन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. शॉर्टफॉल अगर होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल होता है, सो दे हैव टू गिव टू हियर. नाउ द गवर्नमेंट इज टेलिंग इफ शॉर्टफॉल होता है PSL में, यू हैव टू ऑल्सो गिव टू मनी टू UIDF, और यही पैसा अर्बन डेवलपमेंट में यूज होगा. फाइन. जब अभी तक RIDF में पैसा जाता था, आज से UIDF में भी जाएगा. इट विल बी द टाइम व्हेन इट विल बी एस्टेब्लिश्ड. ओके, RIDF से जो पैसा जाएगा PSL सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से, अगर बैंक्स आर नॉट एबल टू रीच द टारगेट, 18% हो गया या 40% नहीं दे पा रहे, दे हैव टू गिव मनी टू हियर, एंड दिस फ्रॉम हियर द मनी विल गो टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. UIDF के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ UIDF को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक. RIDF को कौन इम्प्लीमेंट करता है? इट इज नाबार्ड. ओके, RIDF इज एन ओल्ड वन, विल स्टडी हियर. RIDF काफ़ी पुराना है लेकिन आज भी न्यूज़ में है. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. 1995 से है. और काम क्या करता है? फाइनेंस करेगा. सिंपल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, मेंटेन्ड बाय नाबार्ड. रिमेंबर, नाबार्ड 1982 से है, शिवरमन कमेटी से आया है. एंड नाबार्ड इज ए रीफाइनेंसिंग एजेंसी. लोन डायरेक्टली नहीं देता है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी, डज नॉट गिव डायरेक्ट लोन्स. रिमेंबर, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू प्रोवाइड. तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोन प्रोवाइड करेगा. इसमें पैसा आ गया, इट विल प्रोवाइड लोन्स टू होम? टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट ओन कॉर्पोरेशन. ठीक है, टू एनेबल देम सो दैट दे कंप्लीट द ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, सोशल सेक्टर में हो गया, रूरल कनेक्टिविटी में हो गया. दीज आर द एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, बेसिकली स्टेट. ओके, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी एलिजिबल हैं फॉर लोन्स. ओके, फ्रॉम द RIDF. UIDF अभी आएगा, दे विल बी सेटअप लिखा है, विल बी सेटअप. सो दिस ईयर when UIDF will be set up, all these provisions will also be coming. So we have to cover that also when it gets established. Now next thing is कर्नाटका को लेके एक न्यूज़ में है बजट में, वाटर फॉर ड्राउट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका. तो यहाँ पे द गवर्नमेंट सेड इट विल गिव 5,300 करोड़. ठीक है, to be given to the Upper Bhadra project. Now we have to cover this Upper Bhadra project here. To provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. Project
तो ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर in February 2022, the Chief Minister of Karnataka announced that the high powered committee of central government ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया है। तो जब नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलेगा तो बजटरी एलोकेशन इज गिवन, दैट इज वाई 5,300 crore is given to the budget. Budgetary allocation is given. It is the first time Karnataka state one project has got national status. Last year news में था, okay? So this project was launched with the aim of irrigating this much hectares by means of micro irrigation in drought prone districts of Chitradurga, Ikmangalur, Devangere and Tumkuru district. इसमें no need to remember कर्नाटका में है। Just you can remember it was launched to objective क्या है, sustainable irrigation facility in the Kharif season, क्योंकि काफ़ी drought region है वो। Okay, fine. So these things are not important much. Okay, so it is the first project from state to get this status. सेंट्रल कर्नाटका नेशनल प्रोजेक्ट हो गया, मिल गया इसको। तो इतना पैसा भी मिलेगा अभी, एंड और कुछ खास नहीं है। ओके, इट इज़ ए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, रिमेंबर, अंडरटेकन बाय विश्वेश्वरैया जला निगम लिमिटेड, नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। So in the first stage, this project would lift water from Tunga River to Bhadra. Second stage में it would lift from Bhadra Reservoir and provide it to a tunnel near Ajampura. फिर water will be provided through gravity canal in Tungabhadra basin of Krishna. You have to remember these terms or this fact. You have to remember. Okay. Fine. Now स्टोरेज, अगेन बैटरी स्टोरेज को फोकस दिया जा रहा है। अगेन गवर्नमेंट इज गिविंग बूस्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 35 crore प्रायोरिटी कैपिटल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, बैटरी स्टोरेज टू गेट अ वायबिलिटी गैप फंडिंग। बैटरी स्टोरेज बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जब यूज होगा तो बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओके, उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज चाहिए। उसके लिए वी कवर्ड टुडे इन आवर इनिशियल स्लाइड्स, कस्टम ड्यूटी कम हुआ है। So here, what is viability gap funding? See, viability gap funding नाम से ही पता चल जाएगा, फंडिंग गैप है, बिकॉज इट इज़ नॉट येट वायबल। तो उसका मतलब ये है, तो वायबिलिटी गैप फाइनेंस मीन्स ए ग्रांट। पहले तो ये ग्रांट, ये लोन नहीं है, ठीक है। लोन में इंटरेस्ट रहता है, ग्रांट में इंटरेस्ट नहीं रहता है। ओके, तो इट मीन्स ए ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फाइनेंशियली वायबल नहीं है। जस्टिफाइड इकोनॉमिकली लेकिन फाइनेंस गैप आ रहा है, ठीक है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अमाउंट इन बजट आर मेड ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। सच ए ग्रांट अंडर viability gap funding is provided as a capital subsidy to attract the private sector players to participate in PPP projects that are otherwise financially unviable. जो financially unviable है उनको एक kind of a capital पैसा दिया जाएगा, subsidy will be given. It's kind of a subsidy given by the government basically. So this ये जो viability gap scheme है ये 2004 में हुआ था, to support projects that come under the public private partnership, PPP में है। ऐसा नहीं कि only private को है, public government is also a stakeholder in that project. So funds will be provided through government's budgetary allocation. Sometimes it is provided by statutory authority who owns the project asset. याद रखना, the grants will be available only for infrastructure projects where private sector sponsors are selected through a process of competitive bidding. सिर्फ infrastructure projects को जाता है जहाँ पे private sectors का competitive bidding से sponsor it is selected by the government through competitive bidding. Okay. कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो द टेंडर जो कम पैसे में गवर्नमेंट को बोलेगा विथ प्रॉपर एक्सपर्टीज एंड प्रॉपर टेक्नोलॉजी या फिर जो भी है, तो उनको सिलेक्ट होता है। ओके, तो इट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली बैटरी स्टोरेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से में ही आता है। ओके, फाइन। नाउ सम इम्पोर्टेंट stuff related to financial sector, some proposed measures. It means these are new things. Setting up central data processing center for faster handling of administrative work, credit guarantee for MSME, okay,
1 अप्रैल से 9,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किया जाएगा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी. बट हियर आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स अ न्यू थिंग. तो ये क्या है? फाइन, विल स्टडी दिस. National Financial Information Registry. It is to serve a central repository of financial and ancillary information. Basically ये facilitate करेगा flow of credit, efficient flow of credit, promote financial inclusion, foster financial stability. ओके अभी तक हुआ नहीं है. तो इसके लिए एक नया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होगा. गवर्नमेंट ने बोला है न्यू लॉ आएगा दैट विल गवर्न दिस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब पैसा सही से फ्लो हो रहा है या नहीं, फॉर एनीथिंग. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जा रहा है, बहुत सारे सेक्टर में जा रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन एक रजिस्ट्री पे रहेगा नेशनल लेवल पे. ओके. एंड ये जो एंड दिस हैज़ टू बी कंसल्टेड विथ RBI. तो एक नया लॉ भी आएगा टू ब्रिंग दिस आफ्टर कंसल्टेशन विथ RBI. The finance minister said that the financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations to simplify, ease and reduce the cost of compliance. तो यहाँ पे इसको एक रिव्यू होगा. देयर विल बी रिव्यू. सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया जाए. फाइनेंशियल सेक्टर मतलब RBI को कंसल्ट किया जाएगा, IRDA को, दिस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, फिर बहुत सारे जो रेगुलेटर BB है रेगुलेटर. तो ये सब रेगुलेटर्स को पूछा जाएगा. ओके. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री. और एक चीज़ भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बोले हैं कि एन इंटीग्रेटेड IT पोर्टल विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर इन्वेस्टर्स टू reclaim with ease unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education Protection Fund Authority, IEPFA. वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया नहीं है, दिस इज ऑलरेडी देयर. तो गवर्नमेंट ने ये बोला है अभी कि एक IT पोर्टल होगा इंटीग्रेटेड, जहाँ पे इन्वेस्टर्स रिक्लेम कर सकते हैं. कोई एक शेयर दे हैव नॉट क्लेम्ड इट, कोई डिविडेंड दे हैव नॉट अनपेड, कोई उनको दिया गया नहीं है, दे हैव नॉट गॉट द डिविडेंड, दे कैन रीक्लेम इट. ओके. फ्रॉम हुम? फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. नाउ दिस थिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस, विल कवर दिस. ओके. क्या करता है इन्वेस्टर इन एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड? ओके. इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जैसे भी है. So this first of all there is a fund, okay, for administration of investor education and protection fund. ये एक फंड है. इस फंड को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट इन 2016 एस्टेब्लिश किया था दिस अथॉरिटी. ओके. एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. इसके अंडर में अंडर कंपनीज एक्ट में किया था. ओके. सो बेसिकली इट इज अ पब्लिक कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम करता है. काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. इस फंड को प्रोटेक्ट करेगा और एडमिनिस्टर करेगा. मेक रिफंड करेगा एनी शेयर्स, एनी डिविडेंड विच यू हैव अनक्लेम्ड, यू हैव नॉट क्लेम्ड इट, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, एनीथिंग टू इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स. वेरी सिंपल. आपका कोई डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका जो डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है बट यू हैव नॉट टेकन इट, your dividend you have not claimed it, so it will make those things refund. Okay. This particular fund, investor education protection fund under Ministry of Corporate Affairs, regulated by this authority. So all these things are mentioned here, you can just go through. Okay. Now coming to financial sector, we have covered this Mahila Samman Bachat Patras, this saving we have covered, right? 7.5 7.5% इंटरेस्ट रेट में आपको मिलेगा जो आप इन्वेस्ट करोगे. सो इट इज़ ए दिस बचत पत्र इज़ अ वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 year पीरियड विथ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 lakh फॉर वुमेन. ओके. नाउ सीनियर सिटीजन्स के लिए इनहेंस मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट बढ़ गया है 15 lakh to 30 lakh. गिफ्ट सेवरल इनिशिएटिव्स अभी आएगा टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज. गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सिटी है, गिफ्ट ऐसी जो गांधीनगर में है, it is international financial service center. Okay, so you can cover gift
इट इज़ एन ओल्ड थिंग, इट इज़ जो एक्सचेंज रहता है, ओके, इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रीचिंग टू द लास्ट माइल। यहाँ पे कुछ नया स्कीम्स एसेट्स तो नहीं है, एक है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कर्नाटका का माइक्रो इरिगेशन में, ड्राउट प्रोन में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 38,800 मोर टीचर्स आ रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ओके। एरियाज कहाँ पे ये स्कूल है? एरियाज जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बहुत होते हैं। दिस आई हैव कवर्ड इन 2 to 3 days बैक करंट अफेयर्स, इट वाज इन न्यूज़ इन पीआईबी, आई हैव कवर्ड, यू कैन गो थ्रू एंड चेक। पुराना स्कीम है, काफ़ी पुराना है वैसे। नाउ फ्री फूड ग्रेन अंडर अंत्योदय योजना, यू हैव टू कवर दिस, दिस इज एन ओल्ड स्कीम। नाउ पीएम आवास योजना, ओल्ड स्कीम, आउटले इंक्रीज हुआ है, दिस एन ओल्ड स्कीम, सो आवास योजना यू हैव टू कवर। Garib Kalyan Yojana, you have to, okay, it's Garib Kalyan Yojana, sorry. You have to cover, these are old schemes, you can cover from internet. These may be asked in prelims, okay, these are always in news. Now one new thing is to be, one new mission is to be launched in this year. When it will be launched, full-fledgedly we'll cover it. Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal group development mission. Now PVTG is always in news. PVTG is always in news. I have already covered in January current affairs someday. Most of the current affairs are covered in January. If you cover it, you will come to know. And you cover PVTG also. Now PVTG 75 groups, tribal groups. PVTG are declared under Ministry of Home Affairs, not this, not tribal. Okay. Fine. So one Bharat Shri to be set up. This is also it will be happening in this year. Bharat Shri to be set up for digitization of ancient inscription जो है उसको digitized format में लाया जाएगा. Okay. Okay, fine. Now coming to the final part, last two parts, that is sources of deficit financing. Now this is an economy part. This is a ecostatic part. Okay, we cover in ecostatic. So here, if you see the trend. डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कहाँ से पैसा लिया जाता है, ओके। मार्केट बोरिंग्स होता है, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, एक्सटर्नल डेप्ट बाहर से लेते हैं, स्मॉल सेविंग्स पे जो सिक्योरिटी मिलते हैं वहाँ से यूज़ करते हैं, इंटरनल डेप्ट, पब्लिक अकाउंट, तो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग यहाँ पे है, बट इट इज़ एक्सक्लूडिंग, सो दिस इज द एक्सक्लूडिंग मार्केट बोरिंग, दिस इज द मार्केट बोरोइंग, ओके। तो मार्केट बोरिंग कहीं ना कहीं सेम ही है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो ट्रेंड इज मोस्टली सेम, उतना कोई शार्प इंक्रीज नहीं हुआ है। नाउ इफ यू सी, नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेंड क्वेश्चंस, ओके। दे विल आस्क यू कितना है, ज़्यादा क्या है, सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग में, विच इज़ द मोर। इफ यू सी केयरफुली फॉर दिस ईयर, if you see carefully for this year 2020 to 2023, okay, so here this is a yellow color, okay, so yellow color is this. तो सोर्सेस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग में रैंक 1 अगर किसी का है, हर साल काफ़ी पिछले 3-4 साल से 4 साल से सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल स्विंग्स इज नंबर 1, दिस हाइएस्ट, ओके। देन सो दिस इज नंबर 1। सेकेंड इज रेड कलर, रेड कलर क्या है, अदर रिसीव, दैट इज इंटरनल डेप्ट। ऑलवेज रिमेंबर इंटरनल डेप्ट ज़्यादा है एक्सटर्नल डेप्ट से। दिस इज सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग एज फार एज डेफिसिट फाइनेंसिंग सोर्सेस आर कंसर्न, ये दो में है, ओके। so this much if you remember you can solve the paper if like trend questions will come, fine। बाकी स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड एक्सटर्नल डेप्ट काफ़ी आसपास ही हैं, ओके, ठीक है। now this is the final part of our budget. So this is also important for prelims. This we cover in budget economy, when we cover a budget in economy, not in polity. So here if you see the rupee comes from and the rupee goes to, okay, so here the rupee comes from for now the thing is highest कहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, रेवेन्यू, इट इज़ नथिंग बट रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज एक्सपेंडिचर। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, इफ़ यू सी इट इज़ बोरोइंग,
and other liabilities. ओके, जो बोरो जो पैसा आ रहा है बोरो करके अराउंड 35%. कॉर्पोरेशन टैक्स कितना 15%. कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स. ओके, इनकम टैक्स भी 15%. दिस इज ए डायरेक्ट टैक्स. ओके, now you see carefully GST 17%. GST is an indirect tax. So GST तो GST कम है. Okay, GST is less than direct tax. Remember 17. मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स से ज़्यादा है बट इनकम टैक्स से ज़्यादा है. बट अगर हम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मिला के लाइक इफ यू कंपेयर देन इट इज़ लेस. ओके, एंड 6% इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%. सबसे कम है. नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट इज लेस ओनली 2%. customs 4%. So just do a you can mention this in a ascending or a descending row in your note copy so that if a question comes you can arrange it if the question comes. Okay, तो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से आता है. और पैसा जाता कहाँ पे है? एक्सपेंडिचर, खर्चा, दैट वी कॉल इट एज खर्चा. तो खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है? इफ़ यू सी केयरफुली 20% इज इंटरेस्ट पेमेंट्स. जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं बाहर से, बोरोइंग तो कर लेते हैं, यहाँ पे पेमेंट भी तो करना पड़ेगा राइट. इंटरेस्ट पेमेंट 20%. ओके, देन कम्स 18%. स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में 18% जा रहा है. फिर 17% जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में. बहुत पैसा जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में. ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में 9%. रिमेंबर सेंट्रल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, रिमेंबर सेक्टर मीन्स एवरीथिंग. फंडिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में फंडिंग इज डन बाय बोथ सेंटर एंड state. It can be 60-40, 70-30, and the implementation in centrally sponsored is done only by the state government. ठीक है. सब्सिडी बहुत कम 7%. सबसे कम क्या है? इफ़ यू सी लास्ट क्या है? इट इज़ पेंशंस. रिमेंबर, so just the top and the layer जो end में है, if you remember that also it will be enough for exam point of view. Okay, so that's it for the budget. And in the next class I'll be covering economic survey. Okay, thank you.